So now we'll understand the meaning of investment decision or capital budgeting in detail. The first question is, what is investment decision? The investment decision is concerned with the selection of assets in which funds will be invested by a firm. Now two basic questions which we need to answer while taking investment decision is how to invest the money and where to invest the money. These are the two basic questions which will be answered by this chapter, capital budgeting. So the question is where to invest the money. The investment of funds has to be made after careful assessment. Assessment of what? Of various projects through capital budgeting. Let us say I am a financial analyst and there are 3 projects in front of me. Project A with the cost of 50 lakh, project B with an investment outlay of 70 lakhs, project C with an investment outlay of 40 lakh rupees. You are a financial analyst, you have been appointed by a company and your budget is of rupees 90 lakhs. So in which project will you invest the funds so as to get the maximum returns with minimum cost? Can you invest in 2 projects, projects A and C, or will you invest in a single project, project B? How will you decide about the choice of project? The choice of project will not be random. It will be based on specific techniques, and about these techniques we will learn in the chapter of capital budgeting. So what is capital budgeting? Capital budgeting refers to the process of making decisions regarding what? Capital investment in fixed assets. What are the examples of fixed assets? Machinery, land and building etc. जब भी हमें मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर ऐसी किसी चीज़ में पैसा लगाना होता है, ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना होता है जो हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट देगा, हमारा लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि फ़िक्स्ड एसेट बनेगा, तो फ़िक्स्ड एसेट में पैसा लगाने से पहले हम उसका अप्रेजल करते हैं कि इसका हमें क्या बेनिफिट होगा, इसके कैश इनफ्लोज क्या होंगे और इसका इन्वेस्टमेंट आउटले क्या रहेगा। उस प्रोसेस को, उस अप्रेजल प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग? द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट ऑफ 4 steps: planning, evaluation, selection and then implementation of the project. Okay, the first stage is of planning. Okay, we plan about the project by finding out the funds available with us, the number of options or investment proposals available to the company, what is the investment outlay of each option. So we have our budget in front of us and the various investment proposals with their respective investment outlays in front of us, as we did in our example. There can be hundreds of investment proposals at one time available to a company, but for the sake of simplicity we have only taken 3 investment proposals in front of us. Project A with an investment outlay or cost of 50 lakhs, project B cost 70 lakhs, project C cost 40 lakh rupees, and the budget of the company is around 90 lakh rupees. So this is our budget and these are the investment proposals available to us with their respective costs. So this phase is covered under the planning stage of capital budgeting. The next and the most important phase of capital budgeting, which we will study in detail, is evaluation phase. Okay. The evaluation phase consists of 2 sub-stages. First is estimation of cash flows and second is evaluation techniques. Once we are familiar with the number of investment proposals available to us and our own budget, we will evaluate the rate of return of each project.
हाउ विल वी इवैल्यूएट द रिटर्न्स फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट? हर एक प्रोजेक्ट हमें हर साल कितना पैसा कमा के देगा। जो एक साल में कैश इनफ्लो हो रहा है एक प्रोजेक्ट से, वो उसकी एनुअल कैश इनफ्लो हो जाएगी। कितने सालों तक हमें कैश इनफ्लोज मिलेंगी, और एंड में प्रोजेक्ट की टर्मिनल वैल्यू क्या होगी। हम इन्हीं कंसेप्ट्स को डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अभी हमने ये समझना है, इवैल्यूएशन स्टेज में दो क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने कवर करना होता है। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज एंड देन इवैल्यूएशन टेक्निक्स। ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, हर एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को हम एस्टिमेट करते कि इस प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा, इस प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा, प्रोजेक्ट सी में कैश इनफ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा। ठीक है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज का एस्टिमेट लगाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम इवैल्यूएशन टेक्निक्स के थ्रू ये पता करेंगे कि इन तीनों इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में से, या फिर n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अवेलेबल टू द कंपनी में से, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और फीसिबल रहेगा हमारे लिए अकॉर्डिंग टू आवर बजट, वन विच गिव्स मैक्सिमम रिटर्न्स विद द मिनिमम कॉस्ट। ओके, लेट अस से हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया था। तो सेकंड, हमने सारे प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कर लिया। उसके बाद हम मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, दैट दिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर अस, देन इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका कंट्रोल में आता है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर करके डिविएशंस फाइंड आउट की जाती हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे है और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे ऊपर है, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव डेविएशन, वेल एंड गुड। इफ़ हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे है लेकिन हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे नीचे, दैट इज़ नेगेटिव डेविएशन, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस। फिर उसका रिव्यू किया जाता है कि हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, जो डेविएशंस थे उसका रीज़न क्या है, उन डेविएशंस को करेक्ट किससे किया जाएगा। बट आवर मेन फोकस विल रिमेन ऑन द इवैल्यूएशन स्टेज। इवैल्यूएशन स्टेज के दो सब स्टेजेस हैं। इवैल्यूएशन स्टेज में हम क्या करते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के कैश फ्लोज को एस्टिमेट करते हैं और फिर इवैल्यूएशन टेक्निक्स के थ्रू पता लगाते हैं कि जो n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हमारे सामने हैं उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा हमारे लिए। ओके, so now we are going to study the evaluation phase of capital budgeting in detail. Okay, the evaluation phase, as told before, will cover the estimation of cash flows and evaluation techniques. Now, जैसे कि हमने पहले कहा था कि हम इस चैप्टर में कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के इनफ्लोज यानी कि रिटर्न्स और आउटफ्लोज को असेस करेंगे। जब भी हमें कोई कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगानी है उससे पहले हमें 3 बेसिक चीज़ें उस प्रोजेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अगर हमने किसी भी प्रोजेक्ट की असेसमेंट करनी है कैपिटल बजटिंग के थ्रू, पहले हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में 3 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स? हर एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक में आपको ये 3 बेसिक चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। कौन सी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, उस पे पैसा कितना लगता है हमारा। उसके बाद सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज, उस प्रोजेक्ट से हर साल मुझे कितनी रिटर्न्स मिल रही हैं। टर्मिनल कैश इनफ्लो, जब उस प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिव लाइफ या फिर इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या रह जाएगी, वो कितने में बिकेगी अगर कबाड़ के भाव बेचनी ही है तो पहला उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, दूसरा उसके रिटर्न्स और तीसरा उसकी प्रोडक्टिव लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ के एंड में उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी। इन 3 चीज़ों के सहारे ही हम उस प्रोजेक्ट का अप्रेजल करेंगे थ्रू वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो कोई भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक अगर हमने लगानी है तो हमें ये 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इन्हीं से हम आगे की चीज़ें डिराइव करेंगे। ओके, now the question is,
what are the various capital budgeting techniques? As studied earlier, we were focusing on the evaluation phase of capital budgeting. इसमें हमने evaluation techniques के बारे में पढ़ना था. तो वो कौन सी evaluation techniques हैं जिनके थ्रू हम कैपिटल बजटिंग कर सकते हैं या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स बेसिकली दो तरह की होती हैं. एक होती हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, जिन्हें ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं, जो ट्रेडिशनली यूज़ होते हैं. दूसरे होते हैं डिस्काउंटेड मेथड्स. ओके, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं एंड दे आर मोर पॉपुलर. सबसे पहले है पे बैक पीरियड. अब नॉन डिस्काउंटिंग या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स में कौन सी टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आती हैं. सबसे पहले है पे बैक पीरियड मेथड और दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड. अब जो पे बैक पीरियड मेथड है उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. यानी कि किसी भी चीज़ में हमने अगर पैसा लगाना है, लेट अस से मेरे को कोई कहता है कि आज आपको मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देता हूँ जिसमें 5 लाख रुपए लगेंगे, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछते हो, मुझे कितनी देर में मेरे पैसे पूरे होके मिलेंगे, कितने सालों में पैसे पूरे होंगे. उसे कहते हैं पे बैक पीरियड. यानी कि अगर आज मैंने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में लेट अस से 5 लाख रुपीज़ लगाए तो मुझे कितने सालों में वो 5 लाख रुपीज़ पूरे होके मिलेंगे. दिस इज़ पे बैक पीरियड. पहले साल में लाख रुपया मिला, कितने रह गए, 4 लाख. दूसरे साल में 1.5 लाख मिल गया, कितने रह गए, 2.5 लाख रुपए. अगले साल में 2.5 लाख रुपए मिल गया, 5 लाख पूरे हो गए. तो उस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड बन गया 3 ईयर्स. ठीक है, 3 ईयर्स. इसी मेथड को हम आगे चल के स्टडी करेंगे. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है वो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ या फिर जो मुझे रिटर्न मिल रही है. रिटर्न क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. और दूसरा जो इसका एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एवरेज इन्वेस्टमेंट. वो हम इस मेथड में स्टडी करेंगे. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं, इन्हें हमें अलग से समझना पड़ेगा. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मॉडिफाइड IRR. अभी हम सिर्फ इन मेथड्स के नाम पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, तो हमने क्या स्टडी किया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग में हमने समझा प्लानिंग में हम ये पता करते हैं कि हमारा बजट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कौन से हमारे सामने. लेट अस से हमारा बजट था 90 लाख का और उसके हिसाब से हमारे सामने 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स थे ABC. A कॉस्टेड 50 लाख, B कॉस्टेड 70 लाख, C कॉस्टेड 40 लाख. तो प्लानिंग स्टेज में हम अपना बजट और अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के कॉस्ट को पता करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस. नेक्स्ट है इवैल्यूएशन स्टेज. अब इवैल्यूएशन स्टेज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ इवैल्यूएशन स्टेज. सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज. प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो तो गिवन है 50 लाख. प्रोजेक्ट बी का कैश इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो तो गिवन है 70 लाख. प्रोजेक्ट सी से मुझे हर साल कितने कैश इनफ्लोज मिलेंगे, आउटफ्लो तो गिवन है 40 लाख. तो हर एक प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज को एस्टिमेट किया जाता है. और नेक्स्ट इसमें सब स्टेज होता है इवैल्यूएशन में, वेरियस इवैल्यूएशन टेक्निक्स को यूज़ करके जो हमने इस फ्लो चार्ट में स्टडी करी थी. नॉन डिस्काउंटेड या ट्रेडिशनल मेथड्स या फिर डिस्काउंटिंग मेथड्स लगा के हम हर एक प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं कि विच प्रोजेक्ट विल बी मोस्ट फीसिबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी. इसके बाद हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमें लगता है उसे सिलेक्ट करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. कंट्रोलिंग के थ्रू हम उसकी
एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे कंपेयर करके डिविएशंस फाइंड आउट करते हैं. इफ़ देर आर नेगेटिव डिविएशंस तो उनके रीजंस और उनको करेक्ट करने के सॉल्यूशंस को रिव्यू करते हैं. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. One thing which we left in between and started off before the evaluation techniques was key aspects of capital budgeting techniques. अब हमें ये तो पता लग गया कि basically there are two types of capital budgeting techniques, traditional methods या फिर नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स और डिस्काउंटेड मेथड्स. ठीक है, लेकिन इन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले 3 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए हर एक प्रोजेक्ट के अप्रेजल के लिए. अगर हमें किसी भी टेक्निक के थ्रू एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है कि ये कितना प्रॉफिटेबल है, उससे पहले हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे अगर किसी स्टूडेंट के बारे में पता करना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है तो उसके मार्क्स पता हों. ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट के अप्रेजल के लिए हमें 3 बेसिक चीज़ें चाहिए, तभी हम इन टेक्निक्स के थ्रू उसका अप्रेजल कर पाएंगे. वो 3 बेसिक चीज़ें कौन सी हैं? द फर्स्ट इज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. हमारे केस में it was project A, B and C. Project A costed 50 lakhs, project B costed 70 lakhs, project C costed 40 lakh rupees, and our budget was of rupees 90 lakhs. Then we should know the subsequent cash inflows and terminal cash inflow. Okay, we'll understand the calculation of these 3 things one by one in detail. सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले. जो भी मैं प्रोजेक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मेरे सामने है उसका मुझे कॉस्ट कितना पड़ेगा, दिस इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले. ओके, इसमें सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट. लेट अस से मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मैंने एक मशीन लगानी है टू मैन्युफैक्चर एंड वेल्ड द स्पेयर पार्ट्स ऑफ बाइसिकल्स, लेट अस से. ठीक है, तो उस मशीन की कॉस्ट क्या है? तो द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ ₹50 lakhs. ओके, वो मशीन मेरे को 50 लाख रुपए की पड़ती है. मशीन मैंने दिल्ली से मंगवाई, लुधियाना पहुंची मेरी फैक्ट्री में. मैंने एक इंजीनियर को बुलाया, उसने कहा सर 50 लाख की मशीन है, इसको इंस्टॉल करने का खर्चा जो मैं आपसे लूँगा वो होगा 5 लाख रुपए. ठीक है, मैंने मशीन मंगवा ली, 5 लाख रुपए उसकी इंस्टॉलेशन पे दे दिए, तो मुझे 55 lakhs की मशीन पड़ी. ठीक है, लेकिन ये मेरा नया बिज़नेस नहीं है, मैं ऑलरेडी बाइसिकल्स के स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस में हूँ. ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास एक ओल्ड मशीन भी पड़ी थी. अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस हो तो आपके पास कुछ ना कुछ पुरानी मशीन भी पड़ी थी. हाँ, मेरे पास एक पुरानी मशीन पड़ी थी, नई मैंने मंगवा ली, तो मैंने सोचा पुरानी वाले को बेच देते हैं. अब अगर पुरानी वाले को बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा कॉस्ट है वो उससे घटेगा. जो मुझे खर्चा पड़ा 50 लाख का, वो 50 लाख का नहीं रहेगा. कुछ पैसा तो मुझे पुरानी मशीन बेच के भी मिल गया. तो अल्टीमेटली सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट को हम इसमें से माइनस कर देंगे. अगर मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो पुरानी मशीन बेच के जो मुझे सेल प्रोसीड्स मिले वो हम माइनस कर देंगे अपने कॉस्ट में से. क्यों? क्योंकि उतने से हमारा कॉस्ट घट गया. कुछ पैसा तो मैंने पुरानी मशीन बेच के निकाल लिया, बाकी अपनी जेब से डाला. तो अल्टीमेटली मैंने अपनी जेब में से कितना डाला? 55 लाख में से 25 लाख मुझे पुरानी मशीन बेच के मिला, तो 30 लाख रुपए मेरी जेब में से गए. ठीक है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने की ये थी कि अगर 25 लाख में मेरी पुरानी मशीन बिकी है तो उसकी बुक वैल्यू क्या है? हर साल मैंने उसके ऊपर अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन तो डाली ही होगी. मेरी बुक्स में जो 25 लाख की मशीन बिकी वो 2 तरह की वैल्यूज़ पे स्टैंड कर सकती है. या तो उसकी वैल्यू मेरी बुक्स में 25 लाख से ज़्यादा हो सकती है या 25 लाख से कम हो सकती है. ये बहुत कम होता है कि जितने में हमारी मशीन बिके उतने ही में ही हमारी बुक्स में स्टैंड कर रही है. अगर मेरी बुक वैल्यू ऑफ मशीन यानी कि मेरे अकाउंट्स में
बुक वैल्यू मशीन की थी 35 लाख, मतलब मेरे हिसाब से आज की डेट में बुक वैल्यू ऑफ मशीन थी 35 लाख, मैंने उसे 25 लाख में बेच दिया। दैट मीन्स मुझे 10 लाख रुपए का घाटा हुआ। दिस इज़ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस किसको कहते हैं? जब हम अपना कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, जब हम अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, तो अगर हमने उसको लॉस पे बेचा, आज की डेट में मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू 35 लाख की थी, मैंने उसे 25 लाख में बेच दिया, तो मुझे 10 लाख का घाटा हुआ। ठीक है, अगर मुझे 10 लाख का घाटा हुआ तो उसके ऊपर मेरी टैक्स सेविंग्स भी होंगी कैपिटल लॉस पे। लेट अस से मेरा रेट ऑफ टैक्स 20% था ऑन कैपिटल गेन्स, तो मुझे 2 लाख की टैक्स सेविंग होगी। अगर टैक्स सेविंग हो रही है, अगर मेरी जेब में कुछ आ रहा है, तो वो मेरे कॉस्ट को घटा रहा है। दैट मीन्स हम उसको माइनस करेंगे। दूसरी तरफ मेरी बुक्स में उस मशीन की वैल्यू थी 15 लाख, मैंने 10 लाख के प्रॉफिट पे बेच दी। बुक्स में वैल्यू थी उसकी 15 लाख, मैंने बेची 25 लाख में, तो 10 लाख का मुझे गेन हुआ, कैपिटल गेन। 20% रेट ऑफ टैक्स है कैपिटल गेन्स पे, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से मुझे उसके ऊपर टैक्स भी पड़ा। तो ये तो मेरी जेब में से गया है, दैट मीन्स मेरा कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ। या कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा। अगर कैपिटल गेन हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर कैपिटल लॉस हुआ तो टैक्स सेविंग होगी। हमने ये वाला ऑप्शन पिक किया कि हाँ मुझे कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है ना। मैंने ऑप्शन पिक किया कि कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, तो 55 लाख की मुझे नई मशीन मिली थी, 25 लाख की मैंने पुरानी बेच दी, टोटल मेरी जेब में से 30 लाख गए। फिर जो मैंने मशीन बेची उसके ऊपर मैंने कैपिटल गेन का टैक्स दिया 2 लाख रुपए, वो भी मेरी जेब से गया, तो मेरा खर्चा हो गया 32 लाख का। अब मशीन अपने आप में काम नहीं करेगी, उसको चलाने के लिए कुछ स्टॉक खरीदना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों से पैसे उधार लेके स्टॉक खरीद सकते हैं, कुछ बिल्स रिसीवेबल बन जाएंगे, तो हमारे कुछ करंट एसेट्स होंगे। दूसरी तरफ हमारी कुछ करंट लाइबिलिटीज़ होंगी, यानी कि कुछ लोगों को पैसे देने, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। तो जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस प्रोजेक्ट की वो ऐड हो जाएगी। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये वाली इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और ये वाली जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये मेरी स्टॉक, डेटर्स या क्रेडिटर्स का खर्चा है। कुल मिला के मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले था वो 40 लाख का बना। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जोड़ के मेरा खर्चा 40 लाख का बना। दैट मीन्स द प्रोजेक्ट कॉस्टेड मी अराउंड 40 lakh rupees. So the initial investment outlay of my project comes out to be rupees 40 lakhs. So now I have calculated the initial investment of the project which is 40 lakh rupees. अब मुझे पता करना है कि उस प्रोजेक्ट से मुझे रिटर्न्स क्या मिलेंगी। What will be the subsequent cash inflows from the project? ये नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा। ओके, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज पता करने हैं। मुझे 40 लाख की मशीन पड़ी, मैंने इंस्टॉल कर ली। अब उसके कारण हर साल मेरी जो सेल्स होंगी वो कितने की होंगी? 10 लाख रुपए की। जो मैंने नई मशीन लगाई लगभग 40 लाख की, उसके कारण हर साल मुझे 10 लाख रुपए की सेल्स मिलेंगी। ठीक है, अब जब सेल्स होंगी पैसा अंदर आएगा। फिर कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस उसमें से मैं माइनस करूँगी। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली सेल्स और प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं। अगर सेल्स ज़्यादा तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, अगर सेल्स या फिर प्रोडक्शन कम तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कम होंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल हो सकता है वेजेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वेजेस ऑफ वर्कर्स, एक्सपेंसेस ऑन स्टॉक एक्सेट्रा। मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड मेरे खर्चे, स्टॉक का खर्चा, वर्कर्स की वेजेस का खर्चा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब मैंने वेरिएबल एक्सपेंसेस अपने घटा दिए
तो उसको माइनस करने के बाद जो चीज़ मेरे सामने आती है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसे कहेंगे कंट्रीब्यूशन. ठीक है, सबसे पहले सेल्स में से हम वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर अगर कुछ बच जाता है जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, फिर हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस की तरफ जाते हैं. फिक्स्ड एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल है डेप्रिसिएशन. फिक्स्ड एक्सपेंसेस बिजनेस के वो खर्चे होते हैं जो सेल्स के साथ रिलेटेड नहीं होते. वेदर और नॉट द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, वेदर और नॉट द सेल्स वेदर और नॉट आपकी सेल्स हो रही हैं या नहीं हो रही, ये क्वेश्चन नहीं, ये खर्चा होगा ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इवन इफ़ योर सेल्स आर ज़ीरो, इवन इफ़ द प्रोडक्शन इज़ एट ज़ीरो लेवल, ये खर्चे नहीं रुकेंगे. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, जो मशीन है वो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन इज़ गोइंग ऑन और नॉट. तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हम कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे 1 लाख रुपीज़, तो हमारे पास आएगा EBIT या फिर PBIT. PBIT स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसका दूसरा नाम होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT. 7 लाख रुपीज़. फिर से सबसे पहले सेल्स में से हम अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई 8 लाख रुपीज़ की. ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से जब मैंने फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करे तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख रुपीज़. ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट है ब्याज जो हमने उधार के ऊपर देना है. उधार डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकता है, उधार बैंक लोन के फॉर्म में हो सकता है, उधार लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में हो सकता है. इनके ऊपर जो हमने ब्याज देना है उसको माइनस करेंगे 2 लाख रुपए. तो 7 - 2 मेरे पास बचे कितने, 5 लाख रुपीज़. दिस इज़ PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स. सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करें, कंट्रीब्यूशन आई. फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करें, PBIT आ गया. फिर इंटरेस्ट माइनस करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे. लेट अस से मेरी कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 30% है. सो 30% ऑफ 5 लाख कम्स आउट टू बी 1,50,000. 30% ऑफ 5 लाख टैक्स रेट कम्स आउट टू बी 1,50,000. तो मेरा PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, EAT या फिर PAT कम्स आउट टू बी 3,50,000. इसे हम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं. इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक मेथड में यूज़ होगा. PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 3,50,000. इसमें मैं ऐड बैक कर दूंगी डेप्रिसिएशन. हम एक चीज़ भूल रहे हैं, PAT कैलकुलेट करने के वक्त हमने एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस किया था डेप्रिसिएशन के फॉर्म में. ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैश इनफ्लोज. सो कैश इनफ्लोज, समथिंग विच इज़ ऑफ मॉनेटरी नेचर, वुड हैव नथिंग टू डू विद नॉन कैश एक्सपेंडिचर. अगर कैश इनफ्लो पता कर रहे हैं तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो माइनस करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमें PAT चाहिए था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसीलिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी माइनस हुई. तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. डेप्रिसिएशन इज़ एडेड बैक बिकॉज इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस और हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लोज. डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक करी 50,000. 50,000 कैसे निकली डेप्रिसिएशन, हमारा प्रोजेक्ट जो था उसकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट थी 5 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़. हाँ, हमारा जो फिक्स्ड एसेट था उसकी कॉस्ट थी 50 लाख रुपीज़. तो जब हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी तो वो निकल के आई है फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम 50,000. ऐसे तो ज़्यादा होनी चाहिए. चलो ओके, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करिए. उसके बाद हम ऐड करेंगे टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट. जो हमने इंटरेस्ट पे किया है
उसके कारण भी हमें कुछ टैक्स सेविंग हुई होगी, वो हमारे कैश इनफ्लो में काउंट होएगा। तो टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट क्या होएगी? अगर मेरा 20% रेट है टैक्स का, तो इंटरेस्ट जो मैंने पे किया है वो है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ के ऊपर मेरा टैक्स क्या बनता था 20% के हिसाब से? ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 40,000 बनता था। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, आई एम सॉरी, आई नीड टू करेक्ट इट. So the subsequent cash inflows come out to be rupees 4 lakhs. The next logical step will be calculation of terminal cash inflow, which will follow. So how will we calculate terminal cash inflow? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, कि कबाड़ के भाव मार्केट में वो एसेट यानी कि मशीन कितने में बिकी, 1 लाख में। लेकिन मेरी बुक्स में या तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा मतलब 1.5 लाख की, कम मतलब 50,000 की। अगर ज़्यादा हुई दैट मीन्स मुझे कैपिटल गेन होगा, उसके ऊपर जो मैंने टैक्स दिया कैपिटल गेन पे वो मेरी जेब में से जाएगा, तो वो माइनस होएगा। अगर मुझे कैपिटल लॉस हुआ है दैट मीन्स मेरी टैक्स सेविंग्स हुई हैं, तो मेरे लिए वो इनफ्लो है, तो वो ऐड बैक होएगा। मैंने कैपिटल गेन का ऑप्शन चूज़ किया कि मुझे कैपिटल गेन हुआ है, दैट मीन्स स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, जो कैपिटल गेन हुआ वो मेरी जेब में से टैक्स गया उसका, तो मेरी जेब में कितने आए मशीन को बेचने के बाद? 90,000। और कुछ स्टॉक पड़ा था जो वर्किंग कैपिटल में जाएगा, तो कुछ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो भी बेच दिया मैंने, वो पुराना स्टॉक भी बेच दिया। तो कुल मिला के 90,000 मशीन को बेचने के बाद और स्टॉक को बेचने के बाद 60,000 रुपये, टोटल 1.5 लाख रुपये मेरी जेब में आया। ओके, अब से मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40 लाख्स की बनी, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख्स के बने और टर्मिनल कैश वैल्यू 1.5 लाख्स की। जब मैंने ये तीनों चीज़ें पता कर ली, इसके बाद मैं डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करूँगी।